Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, I am Soni Pawar, your English tutor. Today we are going to start with the class 10's Footprint Without Fizz first chapter, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. So, main character in this story is the narrator, that is James Herriot, Mrs. Humphrey and his dog Tricky. Let's start with the story. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Now, the narrator James Herriot जो है वो बता रहे हैं A Triumph of Surgery, that is a triumph, victory. Triumph means victory, surgery. Surgery is a clinic for treating animals. So, what he is here, actually the narrator is a veterinary doctor. He is really worried. जब वो गुजर रहे थे उन्होंने Tricky is a name of a dog. जब उसकी तरफ उनने देखा I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. तो उनकी जो मालकिन थी Tricky की, उसके साथ Tricky को देखा तो एकदम से वो चिंता में पड़ गए. And I was shocked at his appearance. जैसे ही Tricky को देखा उनको एकदम शॉक हुआ. Why? Because of his appearance. Tricky कैसे नज़र आ रहा था? He had become a huge fatly like a bloated sausage. Bloated means एकदम फूला हुआ सा, जैसे कि sausage is a dish जिसमें स्टफिंग की जाती है, तो ऐसे लग रहा था कि एकदम फूला हुआ. bloated here means swollen, so it was looking as if Tricky को देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कुछ भर दिया है, मतलब इतना मोटा हो चुका था. Sausage with a leg at each corner, his eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. So, you can see here the appearance of a dog Tricky कैसे नज़र आ रहा है, जैसे कि कुछ अंदर उसके अंदर कुछ भर दिया गया है. So, now only his legs are at the four corners looking thin. His eyes bloodshot. Eyes जो आंखें थी एकदम लाल लाल हो चुकी थी. And rheumy that is that is a body disease. It is a body disease. What is kind of disease it is? जैसे कि आँख में से और नाक में से एक म्यूकस डिस्चार्ज होता है, एक that is a liquid flowing out of, watery liquid flowing out of eyes and nose. तो इसकी भी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी. Tricky की आँखें लाल थी. There was a rheumy, that is a mucus liquid coming out of the eyes and nose. तो वो सीधा देख रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था, और उसकी जो that is his tongue lolled from his jaws, जो उसकी जीभ है वो भी बाहर निकली हुई थी. Lolled from his jaw. Lolled means hanged out. Mrs. Humphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. So here listless मतलब यहाँ पे जो Mrs. Humphrey is the another character in the story apart from Mr. Herriot. Narrator जो है क्या कह रही है कि जो Tricky के लिए कह रही है कि ये Tricky बहुत ज़्यादा careless है. Why? Mr. Herriot it seemed to have, क्यों? इसमें कोई एनर्जी ही नहीं है. So actually she is saying कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ही careless है ये, because maybe there may be a lack of nutrition. I thought he must be suffering from malnutrition, कि मुझे लगता है शायद इसमें खाने की कमी हो रही है, जो मैं दे रही हूँ उन चीज़ों में शायद कुछ ना कुछ कमी रह रही है, इसलिए शायद इसकी हालत इतनी ख़राब हो रही है. So I have been giving him some little extras between the meals to build him up.
सो वॉट शी इज़ सेइंग टू मिस्टर हेरियर कि इसलिए खाने के अलावा मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ इसको एक्स्ट्रा देती रहती हूँ। तो ये जो मिसेस फम्फ्रे है ये इतनी कैरिंग नेचर है, एक्चुअली शी वॉज ऑलमोस्ट ट्रीटिंग ट्रिकी लाइक हिज ओन चाइल्ड। तो अपने जो डॉग को है, ट्रिकी को है, एकदम अपने ही लाइक अ चाइल्ड, बच्चे के जैसे ट्रीट करती थी वो। सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, तो वो यही सोच रही थी कि शायद कुछ ना कुछ कमी रह रही है खाने में, इसलिए वो खाने के बीच बीच में उसको एक्स्ट्रा और भी देती थी। क्या क्या देती थी, लेट्स सी, लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील, ताकि इसकी बॉडी अच्छी बिल्डअप हो सके ट्रिकी की। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, सी माल्ट इज़ अ बार्ले, जिसको हम जो बोलते हैं हिंदी, एंड इन कॉड लिवर ऑयल दैट इज द फिश ऑयल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। और apart from that she even giving Horlicks at night to make him sleep nothing much really। और कह भी रही है कि इतना, मतलब मील्स के इन बिटवीन के जो ये है चीज़ें दे रही है, और फिर भी वो कह रही है कि और मैं ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, रात के सोते समय, और हॉर्लिक्स भी देती है, नथिंग मच रियली, एंड शी इज़ एडिंग कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग हैज़ आई टोल्ड यू। अब जो नरेटर है वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने जो मिठाई देते हो इन बिटवीन, क्या उसको आपने बंद किया कि नहीं। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। सो what he is saying here, what she is saying, मिसेस फम्प्रे कह रही है कि अरे मैंने तो ज़रूर रोका था, बीच में थोड़ा बहुत वीक लगने लग गया, इसलिए मैंने मिठाई वापस शुरू कर दी है। आई हैड टू रिलेंट, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद है क्रीम केक्स चॉकलेट्स, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, मैंने वापस शुरू कर दिया। आई कांट बियर टू रिफ्यूज, मैं इसको मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल। तो जो मिस्टर हेरियर थे उन्होंने वापस ट्रिकी की तरफ देखा, इन्होंने सोचा अगर जल्दी से इसका जो है खान पान, मतलब जो भी इतना ज़्यादा दे रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं किया, तो ये सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएगा। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, तो इसमें ट्रिकी की कोई गलती नहीं है, वो एक एनिमल है, जो भी आप दोगे उसका तो मन करेगा, ही विल ईट, तो वो ग्रीड है। एनिमल्स में होता है कि उसके सामने आप जो भी रखोगे वो खाता जाएगा, वो मना नहीं करेगा। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, सेम थिंग, एनिमल्स नेवर नो टू रिफ्यूज़ फूड। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, तो उसको जब भी, शायद दिन के समय या रात के समय, कभी भी दो वो तो खा लेता। As I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, तो जो नरेटर है वो अब सोचने लग गए कि जो लिस्ट बताई है इनमें से और भी कुछ काफ़ी चीज़ें होगी जो मिसेस फम्फ्रे मुझे बता नहीं रही है। श्योर उनको लग रहा था कि और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी जो मिसेस फम्फ्रे ट्रिकी को देती होगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब जो नरेटर है उन्होंने पूछा क्या आप इसका एक्सरसाइज रूटीन जो है वो खाने के साथ एक्सरसाइज भी करवा रहे हो। Well, he has his little walks with me as you can see, but Hawkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So now what he is saying, जब नरेटर ने उनसे पूछा कि आप इसका एक्सरसाइज भी करवा रहे हो, well, तो वो कहने लगी कि हाँ थोड़ा बहुत मैं इसको वॉक्स पे ले जाती हूँ, जैसे कि अभी ये मेरे साथ वॉक्स पे मेरे साथ चल रहा है, बट जो गार्डनर है, नेम ऑफ द गार्डनर हॉकिन, द गार्डनर है जिसके साथ ये क्या था, रिंग थ्रोइंग गेम खेलता था, बट अभी अभी में वो भी बंद हो चुका है। क्यों? बिकॉज गार्डनर की पीठ में दर्द हो रहे, लम्बैगो इज़ अ बैक एक, पीठ इज़ अ बैक एक, उसकी जो पीठ में दर्द होने के कारण अभी जो लेटली वो जो रिंग थ्रोइंग गेम गार्डनर के साथ खेलता था वो भी बंद हो चुका है। I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो अब
आई ट्राई टू साउंड सिवियर। यहाँ पे जो नरेटर है मिस्टर हेरियट थोड़ा वो नाराज़ हो गए, थोड़ा उन्होंने अपनी जो वॉइस है उसको लाउड किया और कहा कि अब मुझे कहना होगा आई रियली मीन दिस, कि आपको इसके साथ स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा, ट्रिकी के साथ आप जो इतना एक्स्ट्रा देती है वो सब बंद करना होगा, नहीं तो ट्रिकी के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो सकता है। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सरसाइज की जो रूटीन है वो एक्सरसाइज रूटीन करवाओ इससे। इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अदरवाइज ही विल बी रियली, सच में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। सो नाउ ही इज़ टेलिंग मिसेस फम्फ्रे कि आपको अपनी जो हार्ट है इसको अब थोड़ा आपको हार्ड करना होगा, बिकॉज you can't keep on going serve the food whatever you like, तो जो भी आपको पसंद है आप उसको डॉग को देते जा रहे हो, तो इसलिए आपको ये सब बंद करना होगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट में लाना होगा ताकि ये बीमार ना पड़े। Mrs. Humphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. तो वो जैसे ही अपने हाथ को wring her hands को एकदम से घुमाने लग गई और कहने लग गई, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ओ मैं ज़रूर करूँगी, बट देखो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। शी इज़ सेइंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं इसका जो खाने का रूटीन है उन सबको बंद कर दूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करूँगी। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड हैज़ इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिगाम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो अपना ऐसे कहते कहते अपना सर नीचे किया जैसे कि वो सच में न्यू रूल फॉलो करने वाली है। न्यू रिगाम दैट इज न्यू रूल इनटू प्रैक्टिस, जैसे कि सच में एक वेरी स्ट्रिक्ट डाइट उसके लिए फॉलो करने वाले हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। तो वो जैसे ही जा रहे थे तो नरेटर जो है उनको देख रहे थे, उनको पता था कि अगर इन्होंने इसका डाइट कंट्रोल में नहीं किया तो बहुत जल्दी ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। Tricky was tottering along in his little tweed coat. Now, tottering, that is staggering. तो ट्रिकी को देखा वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, मतलब इतना मोटा हो चुका था कि वो अच्छे से जा भी नहीं पा रहा था। उसके एक ट्वीड का जो कोट है वो भी पहना हुआ था, सारे ऑर्नामेंट्स इसके जो थे, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। तो ट्रिकी के जो खाने में और पहनने में कोई कमी नहीं रखा मिसेस फम्फ्रे ने, इसका एक पूरा वार्डरोब था जिसमें मौसम के हिसाब से अलग अलग कोट्स रखे हुए थे ट्रिकी के लिए। For the cold weather and for raincoat for the wet days, he struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Humphrey. तो ये सब दिमाग में बातें आ रही थी नरेटर के कि इसको कितना मतलब लाड दुलार से रखा जा रहा था। इसका पूरा वार्डरोब कोट से था, कोल्ड वेदर के लिए, विंटर के लिए अलग कोट, और जो रेन कोट्स होते हैं वो भी रखे हुए थे मिसेस फम्फ्रे ने इसके लिए। ही स्ट्रगल, तो वो देख रहे थे कि कैसे वो चलने की कोशिश कर रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था। इन हार्नेस दैट इज ऑर्नामेंटल क्लोथ्स, हार्नेस मीन्स हियर ऑर्नामेंटल क्लोथ्स, जो उसको पहना के रखा हुआ था, तो उन से वो चल नहीं पा रहा था, जो स्ट्रैप्स थे, जो कोट थे। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Humphrey. तो यहाँ पे जो नरेटर है वो कह रहे थे कि मुझे पक्का विश्वास था कि जल्दी ही मुझे मिसेस फम्फ्रे से फ़ोन कॉल आने वाला है ट्रिकी के लिए। The expected call came within a few days. और जैसे नरेटर ने सोचा था थोड़े दिन बाद मिसेस फम्फ्रे का कॉल आ गया। Mrs. Humphrey was distraught. She was totally upset and worried. तो बहुत ज़्यादा मिसेस फम्फ्रे घबराई हुई थी। ट्रिकी would eat nothing, refused even his favorite dishes. अब वो फ़ोन में कह रही थी कि ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खा रहा है, और इवन जो उसके फेवरेट डिश हम उसको दे रहे हैं वो भी नहीं खा पा रहा है वो। And beside he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on the rug, panting. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. So now it's very serious। क्या हुआ था, कंप्लेन कर रही थी कि ना तो वो खा रहा है, उसकी फेवरेट डिश बना के रखी है वो भी नहीं खा रहा है, और सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर में, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग हियर मीन्स थोड़ी थोड़ी देर में
वो वॉमिट कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, और सारा दिन क्या कर रहा है, सिर्फ वो अपने मैट पे वहाँ पे लेटा हुआ है। पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स हियर गैस्पिंग, दैट इज ही इज ट्राइंग टू टेक वो ब्रीथ्स, क्या है, सांस ले रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। didn't want to go for walks, didn't want to do anything, so here कुछ भी नहीं करना चाहता है, ना ही वो वॉक्स पे जाना चाहता है। सो मिसेस फम्फ्रे वॉज टोटली वरीड एंड ही वॉज कंप्लेनिंग टू मिस्टर हेरियट। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. तो पहले से ही जो नरेटर है उन्होंने अपने दिमाग में सोच रखा था कि मुझे मेरे प्लान्स एडवांस में ही पता था मुझे क्या करना है। तो उन्होंने सोचा कि अगर ट्रिकी को वापस सही करना है तो सबसे पहले उसको उस घर से बाहर निकालना है। I was only was get out of the house for a period, थोड़े समय के लिए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो इन्होंने सजेस्ट किया कि अब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा फॉर अ फोर्टनाइट, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days. Fortnight, that is a period of 14 days टू बी केप्ट अंडर। तो इसको 14 डेज के पीरियड के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसलिए नाउ ही आस्क्ड मिसेस फम्फ्रे दैट आई वांट टू टेक ट्रिकी विथ मी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, जैसे ही उन्होंने सुना वो एकदम से फेंटर, मतलब उनकी हालत ऐसे हो गई जैसे वो बेहोश होने वाली हो। swooned, fainted. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो यहाँ पे जो मिसेस फम्फ्रे है वो मतलब सोच रही है कि पक्का जो ट्रिकी है उसके बिना नहीं रह सकता है, वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के वो तो मर जाएगा। पाइन, पाइन मीन्स टू लैमेंट, टू शाउट, एंड डाई इफ ही डिड नॉट, अगर वो उनको हर रोज देखेगा नहीं। सो शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो मतलब ट्रिकी और जो मिसेस फम्फ्रे थे उनका इतना मतलब गहरा रिश्ता था। बट आई टुक अ फर्म लाइन, पर जो मिस्टर हेरियर थे उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बताना पड़ा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो उन्होंने कह दिया कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर उसे बचाना है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो उन्होंने सोच लिया कि ट्रिकी को अब एक भी दिन के लिए मिसेस फम्फ्रे के पास छोड़ना नहीं है, और जैसे ही हो जाए उसको वहाँ से ले आ जाए सर्जरी, दैट इज इन दी क्लिनिक, to take him without delay, and followed by Mrs. Fumfrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो ये वहाँ से that is ट्रिकी को उठाया इन्होंने और उसे कार की तरफ ले जाने लगे। marched out, walked out to the car. तो उसको एक ब्लैंकेट में लपेटा ट्रिकी को और उसको ले जाने लगे। मिसेस फम्फ्रेस वेलिंग, मिसेस फम्फ्रे दैट इज शी वो रोने लग गई थी जब उन्होंने देखा ट्रिकी को ले जा रहे हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल्स। तो जो एंटायर स्टाफ था मिसेस फम्फ्रे का, वो सारे के सारे भगदड़ मतलब भागने लगे, अंदर बाहर जाने लगे, और जो भी ट्रिकी के सामान थे वो सब असेंबल करने लग गए ताकि वो डॉक्टर के साथ वो उनके साथ भेजे, ताकि ट्रिकी को वहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना हो क्लिनिक में। सो उन्होंने उनके डे बेड, नाइट बेड, अलग अलग बेड थे वो सारे इकट्ठे किए, उसके जो फेवरेट कुशन्स थे वो भी इकट्ठे किए, उसके जो खिलौने थे, जो रबर रिंग्स थे जिससे वो खेलता था, उसके ब्रेकफास्ट के बाउल, लंच के बाउल और सपर दैट इज़ डिनर बाउल वो भी अलग अलग थे, वो सारे कलेक्ट करके लाने लग गए।
Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि इतनी सारी चीज़ें ये ला रहे हैं, शायद मेरी कार में इतनी चीज़ें ना आ पाए, उन्होंने जल्दी से क्या किया, अपनी कार को स्टार्ट किया और वहाँ से जाने लग गए. As I moved off, Mrs. Humphrey with a despairing cry threw and full of the little coats through the window. तो जैसे ही ये मूव होने लगे, मिसेस फम्फ्रे ने कोशिश की कि उसके जो भी कोट्स है वो जल्दी से कार के विंडो से उन्होंने अंदर फेंक दिए थे. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो जैसे ही कार that is got at the end of the road, उन्होंने विंडो that is कार में जो मिरर होता है उसमें देखा तो क्या देखा इन्होंने कि सारे का सारा जो स्टाफ है, जो मिसेस फम्फ्रे हैं, सब के सब रो रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं. आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. तो उनको देखने के बाद जब उन्होंने देखा पास में, जब ट्रिकी को देखा जो कि बहुत ही बेचारा सा, पैथेटिक दैट इज फुल ऑफ पिटी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. पैथेटिक लिटिल एनिमल, इतना मतलब हालत ख़राब थी कि वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था सीट में पास में बैठे हुए. बाय माई साइड आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. तो जैसे ही उसके सर पे उन्होंने पैट किया, थपथपाया, तो ट्रिकी थोड़ा सा उसने ब्रेव एफर्ट मतलब थोड़ा सा वो एक्टिवनेस बताया, उसने अपनी जो पूंछ है वो हिलाई. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो बोला poor old lad. अब वो उसको डॉग को रेफर कर रहे हैं. poor old का मतलब बेचारा सा प्राणी है, बट तुम्हें कैसे सही करना है मुझे पता है, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ. At the surgery, the household dogs surged round me. So here, जैसे ही वो सर्जरी दैट इज़ क्लिनिक में पहुँचे, जो वहाँ क्लिनिक में और भी काफ़ी सारे डॉग्स थे नरेटर के पास, तो वो सारे के सारे उनके आसपास इकट्ठे हो गए. सर्ज राउंड मी क्राउड. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. तो ट्रिकी उन सबको देख रहा था, जैसे बहुत सारे डॉग्स जब आके आसपास खड़े हो गए. विद डल आइस, उसकी जो आइस थी बहुत ही डल थी, कुछ थोड़ा भी एक्टिवनेस नहीं था. और जब डॉक्टर ने दैट इज़ द नरेटर ने उसको मैट पे छोड़ा, तो वो उस मैट पे लेट गया और बिल्कुल मोशनलेस मतलब हिल डुल भी नहीं रह रहा था वो. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जैसे कि इतने क्लिनिक में जो और भी डॉग्स थे वो सब आके ट्रिकी के आसपास घूमने लगे. थोड़ी देर तो उसके आसपास घूमे, और जब देखा कि ट्रिकी में बिल्कुल एक्टिवनेस नहीं है, वो कुछ भी मतलब हिले बिना बैठा है, तो वो सभी भी उसमें बिना इंटरेस्ट लिए चले गए. सोचा कि ये तो कुछ कर भी नहीं रहा होगा या ना खेल उनके साथ अकम्पनी कर रहा है, इसलिए उसको इग्नोर किया ट्रिकी को, और वो सारे डॉग्स वहाँ से चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो जो नरेटर है उन्होंने ट्रिकी के लिए बेड तैयार किया, दैट इज़ वार्म लूज बॉक्स, जो पास में ही एक दूसरे डॉग्स के जो बेड थे उसी के पास उन्होंने ट्रिकी के लिए भी एक वार्म लूज बॉक्स में बेड की तैयारी की ताकि वो सो सके. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो 2 दिन तक उसको ऑब्जर्व किया नरेटर ने ट्रिकी को. 2 दिन तक उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, वो सिर्फ उसको बहुत सा पानी पीने के लिए दे रहे थे. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो जैसे जैसे दूसरा दिन ख़त्म होने को आ रहा था, तो देखा कि ट्रिकी में थोड़ा सा एक्टिवनेस आ रहा था. ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा एक्टिवनेस आ रहा था उसमें, और वो थोड़ा थोड़ा अपने आसपास के सराउंडिंग में इंटरेस्ट ले रहा था, देख रहा था. और तीसरे दिन तो वो दूसरे डॉग्स के साथ वो जाने लग गया था. जैसे ही दूसरे डॉग पीछे आंगन में शोर करते, वो
की शोर की आवाज़ सुन के वो जाने लग गया. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला देखा कि ट्रिकी जो है वो बाहर गया और जल्दी ही देखा कि जो और भी डॉग्स है, दैट इज़ द ग्रे हॉर्न हंटर डॉग, वो ट्रिकी के आसपास आके घूमने लग गया. एनगल्फ मीन्स स्टार्टेड सराउंडिंग ट्रिकी, encircling he and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. तो बाकी सारे जो डॉग्स थे ग्रे हॉर्न के साथ साथ ट्रिकी के आसपास मंडराने लग गए और थोड़ी देर बाद वो सब जैसे कि ट्रिकी को इंस्पेक्ट कर रहे हो, सूंघ रहे थे ट्रिकी को, और थोड़ी देर बाद सबके सब जो थे गार्डन की तरफ जाने लग गए और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चलने लगा. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद अ सरप्लस फ्लैट. तो अभी जो फैट है ट्रिकी का वो कम नहीं हुआ था, तो ट्रिकी भी उस फैट के साथ बॉडी के साथ धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जाने लग गया. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. सो यहाँ नरेटर जो है वो कह रहे हैं कि जब उनका फीडिंग टाइम आया था तो मैं वहाँ पहुँचा. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट, तो मैं भी वहीं था. आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो यहाँ पे ट्रिस्टन, दैट इज़ आई वॉच वाइल ट्रिस्टन, जो एक और डॉग था ट्रिस्टन, उसने क्या खाना खाते खाते वो खाना नीचे गिरा दिया. स्लॉप द फूड इनटू द ब्लाउज. स्पिल्ड, स्लॉप्ड मीन्स स्पिल्ड, नीचे खाना गिरा दिया था. देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग. तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि जब लंच दैट इज़ जब फीडिंग टाइम आता है डॉग्स का, तो क्या होता है कि ये सब एकदम रश होता है, डॉग्स के बीच में रश होता है और वो अपने अपने बाउल्स को जल्दी जल्दी खाना फिनिश करने की सोचते हैं. नहीं तो उनको पता है कि कंपटीशन होगा, कि अगर वो अपना फिनिश नहीं करेंगे तो कोई और डॉग आके उनका जो मील है वो फिनिश कर देगा. When they had finished, Tricky took a walk round these shining bowls, licking actually inside one or two of them. तो जैसे ही सबने अपने अपनी जो बाउल्स है फिनिश कर चुके थे, तो ट्रिकी धीरे धीरे बाकी के बाउल्स, एक या दो बाउल्स के आसपास जाके उनको लिक करने लगे, उनको चाटने लग गया. Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jolting his way towards it. So here jolting means pushing. तो दूसरे दिन जो नरेटर है उन्होंने ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा और उन्होंने देखा कि कैसे ट्रिकी कोशिश कर रहा है जो दूसरे डॉग्स के साथ जाकर अपने बाउल से खाना खाने के लिए. ही वॉज पुशिंग दी अदर डॉग्स. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. तो उस दिन से और उस दिन के बाद से जो प्रोग्रेस देखा इन्होंने ट्रिकी पे वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस था. वो उसमें थोड़ा एक्टिवनेस आ गया था. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages means a fight. तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला. विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मतलब उसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका ट्रीटमेंट किसी दवाइयों से नहीं हुआ, बट फिर भी उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया था. वो इम्प्रूवमेंट कैसे आया था कि जो नरेटर है उन्होंने उसको पहले जब वहाँ मिसेस फम्फ्रे के पास से लाए 2 दिन तक तो उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसको खूब पानी पिलाया और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना देना उसको शुरू किया था. और अब वो है कि दूसरे डॉग्स के साथ अच्छा खेल रहा था. ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, तो उनके साथ भागता था. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली, और जो भी डॉग्स मिलके झगड़ा वगड़ा करते थे उसमें वो भी पार्ट लेता था, हिस्सा लेता था. ही डिस्कवर द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट्स. तो ये भी उस धक्का मुक्की में, उस लड़ाई में उस बहुत ही ज़्यादा दूसरे डॉग्स के साथ एंजॉय कर रहा था. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. So he became, तो बाकी जो डॉग्स थे उन्होंने ट्रिकी को भी अपने ऐसा
गैंग का मेंबर, ऐसा अपने ग्रुप का मेंबर एक्सेप्ट कर लिया था अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू। तो इसका जो मिसेस फम्फ्रे ने इतना अच्छा उसको रखा था कि उसके जो बॉडी में जो हेयर थे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थे, सिल्की थे, उसको इतना अच्छा रखते थे। अनलाइक द अदर शैगी क्रू मतलब जो बाकी डॉग्स थे वो इतने, उनका जो फर था वो इतना अच्छा नहीं था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, तो ये जो बॉडी थी ट्रिकी की वो ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक अ टाइगर बॉडी। फॉर ए शेयर एट द मील टाइम्स एंड हंटिंग, और रात के समय में ये क्या करता था, रात के समय में हंटिंग रैट्स इन दी ओल्ड हेन हाउस, जो हेन हाउस होते हैं उनके आसपास में चूहे घूमते थे, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वो ट्रिकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ये सब एक्टिविटीज़ उसने कभी भी मिसेस फम्फ्रे के घर पे नहीं की होगी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Here, bulletins means here some news of Tricky. तो यहाँ जब ये सब इम्प्रूवमेंट हो रहा था ट्रिकी में, वहीं उसी वक्त मिसेस फम्फ्रे जो है बहुत ही वरीड, चिंता में रहती थी और हर वक्त क्या करते रहती थी, कॉल करते रहती थी नरेटर को। और रिंगिंग डजन टाइम्स अ डे मतलब डजन टाइम, ऑलमोस्ट मोर देन 12 टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट है कि नहीं ट्रिकी में, वो क्या कर रहा है, उसकी हालत में सुधार आया है या नहीं, ये सारी बातें पूछने के लिए हर वक्त कॉल, दिन में कितने ही कॉल कर देती थी नरेटर को। आई डॉज दिस क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वेर बीइंग turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. That is, he is gaining health. तो जो सवाल थे वो सवाल कैसे पूछती थी कि मोस्टली उनके सवाल ये होते थे कि क्या आप उसके क्वेश्चंस जो ट्रिकी के जो क्वेश्चंस है उसको आप रेगुलरली उसको मतलब दैट इज़ टर्न करते हो कि नहीं। व्हेन हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली उसको, एंड हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से क्या आप उसको करेक्ट कोट पहना रहे हो कि नहीं, जो भी हमने भेजे थे। तो इन सब सवालों के जवाब मोस्टली इग्नोर करते थे मिस्टर हेरियट, और वो सिर्फ यही जवाब देते थे, द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि जो ट्रिकी है, लिटिल फेलो हियर ही इज़ रेफरिंग टू ट्रिकी, लिटिल फेलो हियर ही इज़ रेफरिंग टू ट्रिकी कि वो अब खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्जिंग रैपिडली मतलब उसके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब पहले जैसे वो बीमार नहीं है। द वर्ड कन्वल्जिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फम्फ्रे, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि अब उसकी हालत ठीक है, पहले जैसे नहीं है, तो ये सुनते ही मिसेस फम्फ्रे को क्या महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। She started to bring round fresh egg 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब उन्होंने 2 dozens of that is fresh egg 2 dozen at a time 2 डजन एग भेजना शुरू कर दिया ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए, ट्रिकी की बॉडी बिल्डिंग के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये जो थे एग्स थे वो एक्चुअल में ट्रिकी को नहीं दे रहे थे, नरेटर क्या कर रहे थे, नरेटर और उनके जो पार्टनर थे क्लिनिक में, एक्चुअली वो जो एग्स आते थे वो खुद अपना ब्रेकफास्ट बना के खा रहे थे। बट when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. So here for the happy period, तो ये जो पार्टनर थे मिस्टर हैरियट के जो नरेटर हैं, तो ये मिलके वो जो एग्स आते थे उनके ब्रेकफास्ट बना के खाते थे। अब उनको बहुत ज़्यादा शौक तब लगा जब मिसेस फम्फ्रे ने वाइन्स की बोतल भेजना शुरू कर दिया। began the dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. अब वो किसके लिए वो वाइन की बोतल भेजा, ताकि ट्रिकी के ब्लड के लिए है, ताकि वो उसको अच्छा पोषण मिले। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine. तो यहाँ पे जो लंच है, लंच became a ceremonial occasion.
तो एक्चुअल में ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। जो नरेटर है उनके पार्टनर्स थे क्लिनिक में, वो उनके लिए अब एक ओकेशन जैसे हो गया था, क्योंकि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मिसेस फम्फ्रे ट्रिकी के लिए ऐसी चीज़ें भेजती जो कि वो ट्रिकी के लिए एक्चुअल में हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। तो ये लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, तो इनके लिए एक ओकेशन जैसे हो गया कि हर दैट इज़ ओकेशन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो मील के टाइम में, खाने के वक्त एक्चुअल में जो वाइन की बॉटल्स भेजी थी मिसेस फम्फ्रे ने, जो नरेटर है और जो उनके पार्टनर्स थे वो एक्चुअल में एक शेयर करते थे और खाने के टाइम में वो पीते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. तो यहाँ पे brandy, what is a brandy? It is a strong alcoholic spirit. Alcoholic spirit. So उसके अब यहाँ पे उनको एकदम बिलीव करना मुश्किल हो गया कि मिसेस फम्फ्रे ने ब्रांडी तक भेज दिया है ट्रिकी के लिए, ताकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फिजिकल स्ट्रक्चर, फॉर हिज फिजिकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड डाउन, इनहेल्ड एंड रेवेंटली ड्रंक। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो नरेटर है और उनके पार्टनर्स यूज़ कर रहे थे। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by midday wine, finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो इनके दिन बहुत ही अच्छे जा रहे थे। सुबह के टाइम में तो ये नाश्ते में वो जो अंडे भेजे जाते थे वो ये ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जैसे कि फेस्टिवल चल रहा हो इनके लिए। एंड देन जो मिड डे था, लंच टाइम में ये वाइन शेयर करते, और जो रात के टाइम था अराउंड द फायर ये लोग ब्रांडी शेयर करते थे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Fumfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो इन्होंने एक बार तो सोचा कि एक तो अच्छा मौका हो गया है, दैट इज़ अट्रैक्शन। टेम्पटेशन अट्रैक्शन है कि ट्रिकी को हमेशा के लिए ही यहाँ का हम परमानेंट गेस्ट बना दे, ताकि हम भी इसकी जो चीज़ें आती है इतने खाने की, जो एग्स है, ब्रांडी, वाइन, एवरीथिंग, हम लोग अच्छा सा एंजॉय करेंगे। बट आई न्यू, पर इनको ये पता था कि एक्चुअल में वो जो मिसेस फम्फ्रे हैं, जो मालकिन है ट्रिकी की, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी को मिस कर रही है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, तो 14 दैट इज़ द 14 डेज़ का जो पीरियड था वो अब कंप्लीट हो चुका था। एंड फेल्ट कंपल टू फ़ोन, तो उन्होंने कंपल मतलब अपने आप को फोर्स किया था कि अब मुझे शायद फ़ोन करके बुला देना चाहिए मिसेस फम्फ्रे को कि वो आके अपने डॉग, लिटिल डॉग ट्रिकी को अपने साथ ले जाए। हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, मतलब वो खुद वेट कर रहा है, आप इसे ले जाइए, ये एकदम से ठीक हो गया है। एंड ही इज़ टोटली फाइन। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। तो विद इन अ मिनट, जैसे ही उन्होंने कॉल करके ये न्यूज़ दी मिसेस फम्फ्रे को, वो तो थोड़ी ही देर में अपनी कार में, यह 30 feet, अबाउट 30 feet लंबी जो कार थी, ग्लीमिंग मतलब शाइन कर रही थी, ब्लैक कलर की मेटल का, आउटसाइड द सर्जरी, एक क्लिनिक के बाहर आके खड़ी हो गई। द चॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस फम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। सो द चॉफर, दैट इज़ द ड्राइवर ऑफ द कार, ओपन द डोर, और उन्होंने देखा कि मिसेस फम्फ्रे ऑलमोस्ट वहाँ पे अंदर बैठी हुई है। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो वो अपने हाथ को एकदम से, दोनों हाथों को एक पकड़ के रखी है और बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, और सच में पूछ रही है कि मिस्टर हैरियट सच सच बताइए, टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सच में बिल्कुल ठीक हो गया है? Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. तो जो डॉक्टर नरेटर हैं वो कहते हैं कि हाँ ये सच है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ। एंड fetch him means I'll carry him. Here fetch means I'll carry him. तो वो अंदर जाते हैं ट्रिकी को लेने के लिए। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky.
तो इन्होंने जैसे ही अंदर गए देखा था कि वॉक थ्रू द हाउस, तो घर के अंदर से जब वो गार्डन की तरफ गए पीछे देखा कि जो सारे डॉग्स थे वो सब गोल गोल घूम रहे थे, भाग रहे थे लॉन में, और उनके बीच में जो ट्रिकी है एकदम गोल्डन से जो उसके गोल्डन ब्राउनिश बाल है वो चमक रहे थे. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muzzled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. तो 2 हफ्तों के अंदर ही बहुत काफ़ी चेंज आया है ट्रिकी में. वो एकदम से उसकी जो लेथ दैट इज एलास्टिक, मतलब उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई थी. दैट इज एलास्टिक, दैट इज उसकी गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लेक्सिबल हार्ड मजल्ड एनिमल. तो बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबल हो गई थी. जैसे कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी जब वो आया था, एकदम मोटा सा था, उठ भी नहीं पाता था, एक ही जगह पे लेटा हुआ रहता था. अब उसकी बॉडी अच्छी फ्लेक्सिबल हो गई थी, घूम रहा था, दौड़ रहा था दूसरे डॉग्स के साथ. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. विद द पैक मीन्स हियर with the other group of dogs, stretching out in a great bounce. छलांग लगा रहा था और जो उसकी चेस्ट है ऑलमोस्ट जो वो ग्राउंड को टच हो रहा था. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. तो जो नरेटर है उन्होंने उसको उठाया और उसे ले गए. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, it took off from my arms in the tremendous lap and sailed into Mrs. Humphrey's lap. तो जैसे ही वो उस ट्रिकी को ले गए अपनी गोद में उठा के, उन्होंने देखा अभी तक जो ड्राइवर है वो कार डोर को पकड़े हुए था, और ट्रिकी ने जैसे ही मिसेस फम्फ्रे उनकी मालकिन को देखा एकदम से जो नरेटर के हाथ से छलांग लगाई, सीधे मिसेस फम्फ्रे के गोद पे जाके बैठ गया और बहुत खुश हो गया उनको देख के. शी गेव a startle oh and then had to defend herself as he swam over, licking her face and barking. तो ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गया मिसेस फम्फ्रे को देख के, सीधे जाके गोद में क्या करने लगा, एकदम खुश होके वो चिल्ला रहा था और का जो फेस है वो लिकिंग हर फेस, चाटने लग गया. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which had been used. तो जब ये सब एक्साइटमेंट हो रहा था, मिसेस फम्फ्रे उसको लाड कर रही थी अपने डॉग को, तो उस वक्त जो नरेटर है वो ड्राइवर की हेल्प से अंदर गए और जो ट्रिकी के जो बेड्स हैं, खिलौने थे, जो कुशन्स थे, कोट्स और बाउल्स थे जिनको उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाए, कार में रख दी. As the car moved away, Mrs. Humphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes. तो जैसे ही कार जाने लग गई तो मिसेस फम्फ्रे खिड़की से बाहर देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो वो रोने लग गई और रोते रोते उन्होंने कहा Her lips tremble, तो शिवर कर रहे थे, ट्रेम्बल उनके जो लिप्स थे, उन्होंने कहा थैंक बोल, एक शुक्रिया अदा कर रही थी कि ओ मिस्टर हेरियट, हाउ एंड आई एवर थैंक, कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, ये एक विक्ट्री है आपकी क्लिनिक में. सो इट इज़ अ विक्ट्री इन योर क्लिनिक दैट माई ट्रिकी इज डूइंग वेल टुडे. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.